میں یہ جملہ میری ہر تقریر کے شروع میں کہتا ہوں، کیونکہ ہم جتنے بار اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اگر ہم بار بار بھی بولتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو اللہ کے گھر میں بٹھایا ہے، تو سوچیے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو کتنا پسند کر رہے ہیں۔ جس کو پسند کرتا ہے اپنے گھر میں بٹھاتا ہے، جس کو ناپسند کرتا ہے اسے دروازے کے پاس کھڑا کر دیتا ہے۔ اور آتے ہوئے کچھ لمحے دیکھ رہا تھا کہ 5 منٹ ادھر ادھر بڑھ گئے، مگر اس بات کا احساس ہوا کہ وقت کسی کے لیے رکنے والا نہیں۔ یاد رکھ لیجئے کہ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی آج ہم نماز جماعت سے نہیں پڑھے کل پڑھ لیں گے، آج ہم ماں باپ سے معافی نہیں مانگے کل مانگ لیں گے، آج ہم قرآن کی تلاوت نہیں کریں کل ہم کر لیں گے، کل سے ہم کر لیں گے، تو یاد رکھو یہ جو گیا سو وقت ہے کبھی واپس آنے والا نہیں ہے۔ صرف اور صرف یہ کہو گے کاش ہم کل وہ کام کر لیتے، کاش ہم کل نماز پڑھ لیتے، کاش کل ہم ہمارے ماں باپ سے محبت سے بات کر لیتے، کاش ہم قرآن کی تلاوت کر لیتے۔ دیکھیے آج کے ماحول کے لحاظ سے بات کروں گا، آج کا جو ماحول چل رہا ہے بہت عجیب و غریب قسم کا ماحول چل رہا ہے۔ کیسا کہ صبح ہوتی ہے 12 بجے اور 12 بجے صبح ہوتی ہے، ہوئے بعد صبح کا ناشتہ ہوتا ہے، بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ، رہنے کا طریقہ، پڑوسی کے حقوق، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ، گھر کے ماحول کو بدلنے کا طریقہ، ہر کوئی چیز پہلو اٹھا لو آپ دیکھ لو آپ کو نظر آ جائے گا۔ اور آج ہم پریشان ہیں کہ ہمارے گھر سے برکت کیوں ختم ہو گئی۔ آج جب نیوز پیپر صبح کھولتا ہوں تو جو نیوز پڑھنے میں آتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ قرآن پاک کی آیت کو دیکھا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وقودھا الناس والحجارہ۔ کیا کہا جا رہا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ کیا کہا جا رہا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو پڑھتے ہیں، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن کون ہے؟ جس کا ایندھن انسان اور پتھر رہے ہیں۔ کون سی آگ کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر اس آگ کا ذکر ہو رہا ہے جو روز محشر میں لگائی جائے گی۔ اور اس کا ایندھن کون رہے گا؟ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ تمہارے اعمال رہیں گے، اور تم جو دنیا میں عمل کرو گے یاد رکھو تمہیں آخرت میں اس آگ میں ڈالا جائے گا اس ایندھن کو بڑھانے کے لیے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کو دیا تو کبھی ترجمے سے پڑھ کر دیکھو، اس میں ہر چیز کو بتا دیا کہ کیا معاملات ہونے والے ہیں، کیا سوال جواب ہونے والے ہیں، کیسا تمہارا معاملہ ہونے والا ہے، اور ہم لوگ اس کو پکڑ کے بیٹھے ہیں۔ آج جب میں علماء کرام کی بیانات کو سنتا ہوں یا محفلوں میں جاتا ہوں تو بہت اچھی سی بات معلوم ہوتی ہے۔ دیکھو یاد رکھو میرے دادا جان اور میرے والد صاحب اسٹیج سے ہمیشہ کہا ہے کہ جاؤ علماء کرام کے پاس بیٹھو، جاؤ جہاں اللہ اس کے رسول کی بات ہوتی ہے بیٹھو، جہاں دین کی بات ہوتی ہے بیٹھو، جہاں پر اللہ اس کے رسول کی بات ہو تم بیٹھ جاؤ، اور جو بات تمہارے لیے بہتر ہے اسے لے لو، بقیہ بات وہیں چھوڑ کر آ جاؤ۔ انہوں کیا کرے، انہوں کیسا کرے، انہوں کیسا اٹھائے، انہوں کیسا بیٹھے، انہوں کیسا کرے، جاننا ہی نہیں ہے ہم آپ کو صرف یہ جاننا ہے کہ ہمارے آقا نے نماز کیسا پڑھا، ہم آپ کو صرف یہ جاننا ہے کہ میرے آقا کو ہم کیسا راضی کریں، ہم آپ کو صرف یہ جاننا ہے کہ ہم نے ہمارے گھر والوں کے حقوق کو پورا کیا،
हमारे सिर्फ इतना जानना है कि अल्लाह ताला को हमने राजी किया। याद रखो, बंदा जब अल्लाह ताला को राजी करता ना, क्या मामला पेश आता, कुछ होता है तो कहता है अल्लाह ताला देख लेंगे, अल्लाह ताला देख लेंगे। कुछ भी मामला आ जाए, बड़ी से बड़ी मुश्किल सामने आ जाए, क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला देख लेंगे। और याद रखो, क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि जो बंदा अल्लाह से डरेगा, दुनिया में ऐसे कोई चीज से डरिश नहीं होगा। और अल्लाह ताला जब बंदे को पसंद कर लेंगे तो याद रखो, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह ताला ले लेंगे। मगर जब अल्लाह को राजी करने के लिए क्या करना है? जो चीज आज हमको दी गई है वो क्या है? वो एक जरिया है, वो एक काम का तरीका है। हमने उसको असल चीज समझ ली है। वो चीज क्या है? वो चीज दुनिया है। सहाबा इकराम ने दुनिया को असल नहीं समझा। सहाबा ने दुनिया इकराम को तो सिर्फ ये समझा ये कुछ लम्हों की है, जब हम एक सलाम फेरेंगे तो दूसरे सलाम का हमको भरोसा नहीं है, हमें इस पर यकीन नहीं है, हमें तो आखिरत पे यकीन है, हमें तो अल्लाह उसके रसूल के साथ आखिरत में खड़ा रहना है, हमें तो जन्नत के मजे लूटने हैं। ये तो दुनिया के मजे आज लेंगे और कल चले जाएंगे। आप देखिए, आप सीरत पढ़ के देखिए, आप चाहे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहो, आपने कभी ऐशो आराम की जिंदगी को पसंद नहीं किया, आपने कभी महंगी चीजों को पसंद नहीं किया, कभी आपने तकब्बुर नहीं बताया। खलीफा वक्त है, घर को जा रहे हैं, घर पे गए तो क्या बोला जा रहा है कि देखिए आज आपके लिए मीठा तैयार किया गया है। कौन सा मीठा है? आज हम लोग कैसा खाते, आज हम खाने पे बैठे तो कैसा खाते, मेरे आका कैसा खाते थे, अल्लाह वाले कैसा खाना खाते थे। लिखा गया कि बंदे का जो दिल इबादत में लगता है वो भूखे पेट में लगता है। ला महाजाब रमजान में देखियो आप, भूख की हालत में पूरे रहते, रोजा लगते रहता, कौन याद आता? ना कारोबार याद आता, ना घर याद आता, ना पैसा याद आता, याद आता तो सिर्फ मस्जिद याद आती। और असर के वक्त पूरों को देख लो, पूरों के चेहरे मस्जिद में बैठे हुए रहते, हाथों में तस्बीह नजर आते, चेहरे पर बस एक शिकन नजर आती, आंखों में बस एक फिक्र नजर आती कि कब 6 बज जाए, कब मगरिब का वक्त हो जाए और मैं उस खाने को खा लूं जिसे मैंने रोक कर रखा है। किसको राजी करने के लिए? अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए रोक के रखा है। बंदा जब भूखा रहता है तो उसका दिल इबादत में लगता है। इसीलिए मेरे आका ने क्या फरमाया कि जब तुम कभी खाना खाओ तो उसको 3 हिस्सों में बांट दो। हम लोगों ने क्या किया? 3 के 3 हिस्सों में खाने कुछ खाना रख दिया। और आखिर में जब बोला जाता है कि भाई आप खाना तो खा लिए, अब आगे क्या करेगा? नहीं भाई, अभी और जगह बाकी है। फिर उसके बाद सुबह डॉक्टर के पास जाके बोलते अब और जगह बाकी है, मैं जिंदगी भर गोलियां खाना चाहता हूं। मेरे को हैरत इस बात की हुई कि आज हम लोग आप बीमारियों में हैं, मुसीबतों में हैं, आज मुश्किल में हैं, कुछ ना कुछ एक मामला चलते रहते हैं। और जो अल्लाह से रसूल को नहीं मानते, आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखिए, पेपर में आर्टिकल्स आते हैं वो उठा के देखिए, क्या वो अपनी जिंदगी में क्या रवैये रखे। लिखा गया कि सबसे पहले अल्लाह का काम है कि 4 बजे उठते हैं। आज हम बड़े बड़े फोन यूज करते हैं ना, भाई आपको मांगो फोन बहुत पसंद आता, क्या बोलो तो उन्हें बनाया तो उसकी लाइफ के बारे में स्टडी की गई तो क्या लिखा जा रहा कि वो बंदा सुबह अव्वल वक्त उठता है। कब? 4 बजे। बल्कि मेरे आका ने जब फरमा दिया, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे मानने वालों, सुबह को देर तक ना सो, सुबह के अव्वल वक्त को उठो, कुरान की तिलावत करो, वर्जिश का भी हुक्म कहा गया और अल्लाह को राजी भी करो। हम लोगों ने छोड़ दिया। फिर उसमें और एक बात क्या लिखी गई कि नो खाना कैसा खाते थे, तो कहा कि देखो ये शख्स है, बड़ी मालिक है कंपनी का, और उसका खाने का मामला ये है कि वो थोड़ा थोड़ा खाता है मगर कुछ लम्हों से खाता। आज हमारे सब जने बच्चे, यंग बच्चे पढ़ रहे, स्कूल के बच्चे पढ़ के बोल रहे क्या है ये, अरे क्या मामला है, देखे न सुबह जल्दी उठ रहे, थोड़ी देर को खाना खा रहे,
देखिए कितना फायदा हुआ उनकी बॉडी खूद से। अरे मेरे बंदे, मेरे आका ने तो जब ही कह दिया, अरे मेरे मानने वालों, तुम खाने को खाओ तो थोड़ा थोड़ा कर खाओ, ज्यादा चबा कर खाओ। हमने अपने घर से सीरत को निकाल दिया, तो आज जो बच्चे जो पेपरों में पढ़ रहे हैं, आज लोगों की हिस्ट्री पढ़ रही, ये समझ रहे हैं कि वो लोग वो लाए हैं, बल्कि मेरे आका की सीरत से दूर हो रहे हैं। अरे पढ़ के देखो एक बार सीरत। ये लोग जो दूसरे हैं, वो लोग पूरे मेरे आका की सीरत को अपना लिया। रात में जल्दी सोते हैं, सुबह भर वक्त उठते हैं, खाने को अपने आप बांट दिया, काम के ऊपर अपने आप को लगा दिया, और अपनी दूसरी चीजों को ऐसा लाया है कि अगर आप वो देखेंगे, फिर मेरे आका की सीरत को पढ़ेंगे, तो आप बोलेंगे अरे भाई ये तो पूरा का पूरा मामला हमारा दिख रहा है। हम लोगों ने उनकी चीजों को अपना लिया और उन लोगों ने हमारी चीजों को अपना लिया। वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम खसारे में जाते जा रहे हैं। हैरत तो इस बात की हुई मुझे पढ़कर कि जब न्यूज़पेपर खोल के देख रहा हूं तो बस एक ही मामला, कत्ल कत्ल कत्ल, उन्हें इसको मारा, इन्हें इसको मारा, इन्हें इसको मारा, इन्हें इसको बोला, उन्हें इसको बोला, इन्हें इसको बोला। तो पूछा गया कि ऐसे मामले में क्या करना चाहिए? तो ऐसे मामले में मैंने कहा कि सिर्फ एक ही चीज करनी चाहिए, सबसे पहले अपने घरों में महफिलों को शुरू करो, सबसे पहले अपने घर में कुरान की तिलावत को शुरू करो, सबसे पहले अल्लाह को राजी करना शुरू करो। याद रखो, जब इस कान में कुरान की आवाज जाएगी ना, इस कान में जब अल्लाह का जिक्र जाएगा ना, जब कुरान पाक के सूरह फातिहा पढ़ा जाएगा और ये कान से सुना जाएगा, तो दिल की जो कैफियत दुनिया में लग गई है वो फिर हटकर अल्लाह की तरफ लग जाएगी। कैसा होगा? वैसा होगा जैसा आप दावत में पकड़ पकड़ के लेके जाते, वैसा होगा जैसा आप चबूतरों में पकड़ पकड़ कर लेकर जाते, वैसा होगा जैसा कि आप दूसरे मामलात में तेजी करते हैं। वैसे ही आज आपको और हमको तेजी करना है। खाली सुनने का वक्त चले गया, अब सामने वाले नहीं सुन रहे हैं अपना क्या है, अपन क्या बोल रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। आज आपको और हमको चीज करना है, आज आपको और हमको प्रैक्टिकल बनाना है। क्या बनाना है? कि सबसे पहले अल्लाह को राजी करना है। जिसने अल्लाह को राजी कर लिया, गोया दुनिया से खदमा में रहेगी। मेरा कमाल फजल बस इतना है जिधर वो मुझ पे छा गया, मैं जमाने पे छा गया। है ना, इब्राहिम अदम के बारे में क्या लिखा जाता है? बादशाह वक्त है, फूलों का बिस्तर है, बैठे हुए हैं, जाके एक दिन गुलाम लेट गया। वहां फूलों का बिस्तर, पहले लकड़ी के बिस्तरा रहते थे, उस पे एक जानवर की खाल बिछाते थे, थोड़ा भूसा वगैरह डाल देते थे, उनके यहाँ से वही बड़ा बिस्तर रहता था। आज हम जो बिस्तर पे रह रहे हैं, अल्लाह देखते तो बोलते बादशाह तो तुमला है, हम लोग कहाँ थे बोलते पूरे। हमारे जो गद्दे हैं आज कैसे गद्दे हैं, जब ऐसे गद्दे तस्वुर भी नहीं करे थे। क्या कहा जा रहा है कि फूलों के बिस्तर पर फूल डालकर सो रहे हैं। आए आकर गुलाम क्या बोला, एक दिन सो गया उसके ऊपर, सोकर उठा, सो गया। बादशाह वक्त आया, आके फुल कोड़ले मारना शुरू कर दिया। उठकर गुलाम हंसना शुरू कर दिया कि भाई हंस रहा। बादशाह ने कहा मैं तेरे को कोयले मार रहा हूं और तू देखे तो बंदा हंस रहा है। तो कहा गया कि मैं कुछ लम्हों के लिए इस बिस्तर पर लेटा तो इतने कोयले खा लिया, जो बरसों से सो रहा उसका क्या हाल हो रहा हूं। तो आज अपन कितने बरसों से सो रहे हैं, अपना हाल क्या होने वाला है। याद रखो, अल्लाह ताला जब देता ना, दे के आजमा के देखता। मैं इसको गद्दा दे रहा हूँ, एसी दे रहा हूँ, इसको वो बेड दे रहा हूँ, उसको चादर दे रहा हूँ, वो सब दे रहा हूँ। बंदे को जा रहा कहां नहीं, दुनिया की तरफ जा रहा, नमाज की तरफ आ रहा। कहां जा रहा मेरा बंदा? मेरा बंदा मेरी तरफ आ रहा है, मेरा बंदा दुनिया के ऐशो आराम की तरफ भाग रहा। याद रखो, आज अल्लाह ताला दे के देखता, फिर खींचता, फिर देखता कि बंदा कहां जा रहा। उस वक्त भी अपन लोग तुम दे दो भाई, तुम दे दो भाई, तुम दे दो भाई बोले, अल्लाह ताला बोलते जाओ माइच रहो तुम। फिर दूसरा क्या मामला पेश आया? अब बादशाह वक्त है, क्या हो रहा? ले दिया है बिस्तर पर। अल्लाह ताला ने जहन में डाल दिया कि मेरे साथ क्या मामला हो रहा। उस बंदे ने ये कह दिया कि कुछ लम्हों में मैंने इतने कोयले खाए हैं, तो जो बरसों से सो रहा उसका क्या हाल होगा। कहा जा रहा है कि सोच ही रहा था कि ऊपर से एक आवाज आती है कि जैसा कि ऊपर कोई चल रहा है। तो बादशाह ने कहा कि ऊपर कौन है? मेरे घर के ऊपर, मेरे छत के ऊपर कौन है?
कौन है जो मेरे छत पर फिर रहा है, क्या पता नहीं तुम्हारा? तो ऊपर से आवाज आई, मेरा ऊंट खो गया है। तो कहा गया कि ये ऊंट का मामला क्या है, छत पे ऊंट कहां मिलता? तो कहा बिस्तर पे अल्लाह ताला कहां मिलते। इसीलिए पिछले जुम्मे में मैंने कहा था कि अल्लाह के रसूल ने पहला सवाल क्या किया था कि तुम्हारे घर में क्या नमाजी है, और दूसरी बात क्या कही थी कि नमाज के बाद तहज्जुद के बारे में पूछा गया था। याद रखो, जब किसी को मनाना है या किसी से काम निकालना है तो अपन पर्सनल जाके मिलते, जाके उनके पर्सनल बातचीत करते, या तो उनको फोन करके उनको पर्सनली बोलते कि भाई मेरा काम है, मेरा फॉर्म है, मेरी जो भी जरूरियात है उसको कॉल करके पर्सनली बोलते या घर को जाके बोलते। तो अल्लाह ताला को भी मनाना है तो कुछ खास करना पड़ता। अल्लाह ताला से भी कुछ मदद चाहते हो तो कुछ खास करो कि अल्लाह ताला कहे कि बंदा ये बिस्तर को छोड़ा, एसी को छोड़ा, दुनिया को छोड़ा, मोहब्बत को छोड़ा और मेरे सामने खड़ा हो गया। किसको राजी करने के लिए? मेरे को राजी करने के लिए। बादशाह वक्त है जंगलों में चले गए। क्या हुआ? वजीर को मालूम हुआ कि फला जगह बादशाह को देखा गया है। वजीर फौरन पहुंच गया, पहुंच कर कहने लगा कि चलिए, आपने मुझे रियायत दी थी, आज वो रियायत फला जगह से फला जगह तक पहुंच गई है, फला मकाम तक मैंने उसको बढ़ा दिया है, फला जगह को मैंने जीत लिया है। बादशाह से मुस्कुराता हुआ जा रहा है। पूछा जा रहा है कि क्या हुआ, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, आप जवाब पे क्यों नहीं दे रहे हैं? तो कहा कि तुम्हारी हुकूमत वहां तक है, मेरी हुकूमत कहीं और तक है। तो गुलाम ने पूछा, वजीर ने पूछा कि क्या है मामला, मैं समझना चाहता हूं। तो उस वक्त आप सुई से सी रहे थे, आपने तालाब को सुई में डालकर आवाज दी कि मछलियों मेरी सुई गुम गई है, उस सुई को लेकर आओ। तो कई सारी सुइयों को मछलियां लेकर आई। क्या हुआ? उस वक्त उस बादशाह ने अपनी सुई को निकाल लिया और गोया बता दिया कि बंदो, जब तुम अल्लाह को राजी कर लोगे, इंसान तो इंसान, जानवर भी तुम्हारी बात सुन लेंगे। मगर उसके बाद से क्या करना पड़ेगा? उसके बाद से बिस्तरों को छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद से हराम खानों को छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए पेट भर के खाना छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए ऐशो आराम को छोड़ना पड़ेगा, इस सजदे को सर में रखना पड़ेगा। क्या होता कि जब ये सर सजदे में जाएगा, सुभान रब्बिल आला निकलेगा, सुभान रब्बिल अजीम निकलेगा, अल्लाह ताला के सामने सर झुकाएंगे, तो याद रखो दिल और दिमाग दोनों बदल जाएंगे। इस दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाएगी। सहाबा ने तो यही अमल किया कि मुसीबत आ जाओ अल्लाह के सामने खड़े हो गए, खुशी आ जाओ अल्लाह के सामने खड़े हो गए। पूछा जा रहा, अरे भाई आपने खुशी का मामला है, क्या कर रहे हैं? नमाज पढ़ रहा हूं। अरे भाई खुशी है, लोगों से मिलो। तो नहीं, पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। और आज हमारे पास क्या है? खुशी का मामला आता है तो सबसे पहले हमारा तो किरदारी बदल जाता है। हम लोग सब छोड़ देते हैं, दुनिया की फिक्र लग जाती है, अल्लाह को भूल जाते हैं। एग्जाम से एक दिन पहले रिजल्ट पे बंदा जानिमाज पे बैठा रहता है, अल्लाह को मनाते रहता है, अल्लाह के सामने बैठकर अल्लाह को राजी करते रहता है, अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाते रहता है, अल्लाह के सामने अपने आंसुओं को बहाते रहता है, अल्लाह ताला को मनाने की हर वो कोशिश करता है। याद रखो, कोई भी चीज करो दुनिया में मुकम्मल करो, फिर अल्लाह ताला पर यकीन रखो। मां खाली पेपर ना छोड़ के आ रही है आके अल्लाह से दुआ करें तो कुछ होने वाला नहीं है। सहाबा इकराम का भी तो यही मामला था। क्या था? पहले अमल करते थे, फिर दुआ करते थे। या अमल कुछ नहीं हो रहा मगर दुआ अल्लाह ताला से करते जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। अमल क्या है? मेरे आका ने बता दिया कि अमल के भी तरीके हैं, इल्म भी जरूरी है, अमल भी जरूरी है। अगर बंदे के पास इल्म आ जाए, अमल करने का तरीका नहीं आए, तो ऐसे इल्म का फायदा क्या? और इल्म आ जाए और अमल करने नहीं आए तो क्या फायदा होगा? वैसे ही अमल आ जाए और इल्म ना हो तो क्या फायदा होगा? आज आपको और हमको क्या करना है? सहाबा की सीरत को पढ़ना है। आज आपको और हमको कुरान को तर्जुमे से पढ़ना है। आज आपको और हमको अपने घरों में इस्लाही प्रोग्राम करना है। आज आपको और हमको बड़ों और छोटों की अहमियत का मामला बताना है। याद रखो, आगे के हालात और बदलने वाले हैं, आगे और चीजें बदलने वाली हैं। आज मुझे हैरत तो इस बात की हुई, मुझे एक मिनट के लिए एक मेरे अंदर एक गुस्सा आ गया, मगर मैंने अपने गुस्से को दबा लिया। एक बात कहता हूं, बहुत बुरी लगेगी। आज हैरत इस बात की हुई कि मैं एक शख्स को देख रहा हूं,
वो पेशेंट है, मेरे सामने बैठे हुए थे, मैं उनसे बात कर रहा हूं कि भैया की तबीयत कैसी है, क्या है, सब मामला देख रहा हूं, और उनके फर्जंद आते हैं, मेरे सामने बैठते हैं, मेरे सामने और उनके वालिद के सामने बैठते हैं और अपने पैर को उठा के ऐसा रखते हैं जैसा कि उनके बाप नहीं और कोई और बैठा हुआ है। क्या मेरे आका ने यह तरबियत दी? क्या मेरे आका ने यह बताया कि अपने माँ बाप के सामने कैसा बैठना है? मुझे हैरत हुई, एक मिनट के लिए मेरे अंदर एक कैफियत बदल गई, मगर मैंने अपने वहां पर गुस्से को काबू किया। मैंने कहा इनका मामला है, इन्हों जाने। मगर ये होने की वजह क्या है? ये होने की वजह ये है, हम इंग्लिश तालीम करते रह गए, दीनी तालीम को छोड़ दिया। आज बाप बैठे हुआ है तो बेटा पैर उठाकर बैठा है, ये कसूर बेटे का नहीं रहेगा, ये कसूर बाप का है। और आगे ये हालात को देखते हुए मैं आपको बता रहा हूं कि आगे और भी चीजें आपको देखना है। अगर उन चीजों को सही करना चाहते हो तो आज भी मौका है, 15 मिनट निकालो, मेरे आका की सीरत को बताओ, मुल्क को लगाओ, घर पे बुला के बोलो कि माँ बाप के साथ कैसा रहना है, उलमा इकराम के पास लेकर जाओ, दीनी महफिलों में लेकर जाओ, जुमे के बयानात में लेकर आओ। ऐन मौके पे आने का मत रखो। इस स्टेज से मेरे दादा जान बोलते बोलते थक गए, मेरे वालिद साहब बोल रहे हैं, आज मैं भी बोल रहा हूं, अरे भाई वक्त से पहले आ जाओ। क्या मालूम तुम कल रहोगे क्या नहीं रहोगे? क्या जाता है अगर आधा घंटा पहले आते तो आप अगर आधा घंटा पहले आएंगे तो आप कुछ अल्लाह उसके रसूल की बातों को सुनेंगे, अल्लाह को मनाने का तरीका सीखेंगे, अल्लाह के रसूल को मनाने का तरीका सुनेंगे। आधा घंटा लाइन में खड़ने तैयार है, आधा घंटा शॉपिंग करने तैयार है, मगर आधा घंटा पहले मस्जिद में आने के लिए तैयार नहीं है। ऐन खुतबा होते रहेगा, मस्जिद में दौड़ते हुए आएंगे, नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद खुतबा खत्म, दौड़ते हुए भाग जाएंगे। मेरे दादा जान बोलते थे इस स्टेज से कि भाई कोई कोयला लेके ठहरे हुआ है, भाग में तो मार को बोल। ये हालात की वजह से ये बात कर रहा हूं मैं आपको। वो जो मैंने मंजर देखा वो होने का वजह क्या है? यही है कि हम लोगों ने मस्जिदों को भी छोड़ दिया। हम बस ये बोलने में रह गए, तेरी उनकी, मेरी मस्जिद उनकी मस्जिद, ये वो, बस। अरे भाई आओ, अच्छी बात सुनो, जो बात समझ में ना आए मत छोड़ दो, बाकी अल्लाह के हवाले कर दो, अल्लाह ताला देखने वाला है। मगर इससे आने वाली जो आपका जिंदगी है, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। अल्लाह ताला मुझको और आपको नमाज का पाबंद बनाए, कुरान की तिलावत करने वाला बनाए, वक्त से पहले मस्जिद में आने वाला बनाए और बार बार नमाज के लिए बुलाए। याद रखो, उसके लिए भी दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे नमाजी बना दे, बार बार अपने घर में बुलाते जाए। जिसे वो पसंद करता है अपने घर में बुलाता है, जिसे वो नापसंद करता है मस्जिद के बाहर खड़ा करता है। वाली साहब ने आप सबको सलाम अर्ज किया है, वो इस वक्त के सफर पर है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके सफर को आसान करे, उनको सेहत दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज एक इत्तला आई थी कि मौलाना सैयद मुस्तफा रफई साहब, उनकी सेहत के लिए दुआ के लिए कहा गया है कि अल्लाह ताला जो जो बीमार है अल्लाह ताला उन सबको शिफा दे। और उसके साथ साथ अब्दुल जलील उर्फ रफीक साहब दवाखाने में हैं, शिफा के लिए दुआ के लिए कहा गया है। अल्लाह ताला उन सबको सेहत अता फरमाए, आमीन।